Hi everyone, today we are doing some solved examples for the application of definite integration. Let us look at the first one. Find the area of the regions bounded by the following curves, the x-axis and the given lines. तो हमारे पास जो ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइंस है, हमें इसका और एक्स एक्सिस के बीच का रीजन, इसका एरिया ढूंढना है. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी टू प्लॉट दीज कर्व्स. Okay, so first thing is y is equal to x square. Now we have already discussed in the previous video that this is the equation of a parabola. ठीक है. एंड हम लोग क्या करेंगे उसके अलावा, पहले हम लोग ये दोनों लाइंस प्लॉट कर देंगे. x is equal to 1 is basically जब यहाँ पे we have 1 and यहाँ पे when we have x is equal to 3, we are going to draw straight lines that are parallel to the y axis. So it is okay if you draw these diagrams roughly and you should draw them with pencil. Okay, you do not need to write the scale and all of that. You just have to draw a rough diagram. Fine. So these are the lines x is equal to 1 and x is equal to 3. Now after this, we have to draw the curve y is equal to x square. For that, we know that this is a parabola that is upward facing cup के जैसे, right? It is सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस. तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, जो x का वैल्यू है वही डालती हूँ इसमें. तो अगर x 1 है तो y का वैल्यू भी 1 आएगा. तो अगर ये y इज इक्वल टू 1 है तो ये पॉइंट है. एंड जब x का वैल्यू 3 है तब 3 स्क्वायर मतलब y का वैल्यू इज 9. तो लेट्स से 9 इधर किधर तो है. ओके, सो नाउ आई नो दैट ये 0,0 से भी पास होता है. सो दिस इज समवॉट लाइक दिस. ओके, दूसरे साइड पे भी होगा बट हमें उसका कुछ काम नहीं है, इसलिए आई एम नॉट मेकिंग इट. ओके, सो लेट अस लेबल एवरीथिंग. दिस इज x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज द कर्व दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर. व्हाट डू वी वांट टू फाइंड? वी वांट टू फाइंड द एरिया that is between these lines, this curve and the x-axis. So basically we are talking about this area. Okay, now to find the area, what we will do is, you can see it is area under this curve. So over here the required area will be equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके 3 तक. ठीक है. एंड यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन? y इज इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर. तो इट विल बी x स्क्वायर dx. ओके, अब इसको बस इंटीग्रेट करना है विच इज वेरी इजी. सो इट इज x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम 3 to 1. ओके, सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट 3 आई गेट 27/3 minus 1/3. So therefore the answer is 26/3 square units because this is area, right? ठीक है, and that is the answer. So it is very easy, just that you should know how to plot this and then उसके बाद बस पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है. ठीक है. Let us look at the next solved example now. In the next question we have that y square is equal to 4x, x is 1 and x is equal to 4. पहले तो x is equal to 1, ये 2, 3 और ये 4. ठीक है. उसके बाद next thing is y square is equal to 4x. We know that y square is equal to x. ये पैराबोला कौन से शेप का होता है? दिस इज इस टाइप का शेप का, राइट? तो what we will do is we will take these points only and we will plot this parabola. So when x is equal to 1, तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 4. मतलब y कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 2. स्क्वायर रूट लेंगे तो देयरफॉर यहाँ ऊपर भी हो सकता है 2 पे एंड यहाँ नीचे भी हो सकता है -2 पे. ठीक है. जब x का वैल्यू 4 है तब इट इज 16. सो इन दैट केस y कैन बी प्लस माइनस 4. तो और ऊपर 2, लेट मी टेक दिस पॉइंट एंड दिस ओवर हियर इज -4. Okay, so therefore the parabola is somewhat like, okay, we also have to draw these lines. So these lines are
like this. Now because in the question it was mentioned that you have to find the area that is bounded between the curve and the x-axis, तो उस केस में ना we are supposed to find only this area, not नीचे वाला. हम लोग सिर्फ इतने में ही इंटरेस्टेड है जो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में है, तो अदरवाइज वो लोग बोलते हैं इस पूरे एरिया के बारे में. ठीक है, तो अभी हमें ये एरिया ढूंढना है. उसके लिए व्हाट इज दिस कर्व इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बट हमें यूजुअली कैसे चाहिए होता है, वी वांट इट इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर नहीं चलता है. So instead of writing y square is equal to 4x, I can write that y is equal to square root of 4x. और इधर प्लस साइन ही लगाओगे क्योंकि ऊपर के तरफ है. ये नीचे वाला जो कर्व है दैट इज y is equal to माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x. तो हम लोग को तो यही यूज करना है. ठीक है, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 4. So therefore the required area is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके 4 तक स्क्वायर रूट ऑफ 4x dx. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे 4x नहीं लिखना है डायरेक्टली, वो y स्क्वायर का वैल्यू है, हमें हमेशा यहाँ पे y का वैल्यू डालना होता है. ठीक है, ना 4 का स्क्वायर रूट तो 2 है, सो दिस इज जस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x रेज टू हाफ. तो दिस बिकम्स 2 into x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 फ्रॉम 4 to 1. तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो वी विल बेसिकली गेट 4/3. देन जब इसके अंदर 4 डालते हैं तो 4 रेज टू 3/2, मतलब उसका स्क्वायर रूट लेना है तो 2 आएगा, फिर उसका क्यूब करना है मतलब 8 आएगा, और उसके बाद हम लोग को ऑल्सो 1 डालना है, सो 1 रेज टू 3/2 तो 1 ही है. So therefore this is equal to 28/3 square units. Okay. So I hope you understood this question. पहले क्या करना है, ये कर्व्स को ड्रॉ करना है, उसके बाद we have to look for the value for y, and यहाँ पे we have to put y. Okay, not anything else. In the third question we have y is equal to minus 2x, x is equal to minus 1 and x is equal to 2. Step number 1, x is equal to minus 1 and x is equal to 2 को प्लॉट करते हैं. x is equal to minus 1 इधर आएगा, x is equal to 2 इधर आएगा, if x is equal to 1 इधर आ रहा है. ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइंस पहले बना देते हैं. ओके, नाउ इसके बाद we have to plot y is equal to minus 2x. This is a straight line, ठीक है, which passes through the origin because when x is 0 तब y भी 0 है. Now you put the value of x as minus 1. x को अगर minus 1 डाला तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब ऊपर इधर आ रहा है y का वैल्यू. ठीक है, और अगर x को 2 डालते हैं then y का वैल्यू इज minus 4. So 1 2 3 4 somewhere here, right? So if I join these 2 points and it should also pass through the origin, so then I will get my straight line. Okay, now of course this is a rough diagram, तो इतना accurate नहीं आ रहा है. It is okay, चल जाएगा काम. ठीक है, तो therefore this is the line y is equal to minus 2x, this is the line x is equal to minus 1, this is x is equal to 2. We have to find the area between the curve and the x-axis. So it is going to be this part as well as the नीचे वाला triangle. Okay, because the curve is even there. Okay, now we have to integrate this, but remember इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, करेक्ट. तो इस वजह से व्हाट वी विल हैव टू डू इज इसको अलग से करना पड़ेगा और फिर यहाँ से यहाँ अलग करके उसका मॉड लेना पड़ेगा. सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले तो -1 से लेके 0 तक इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को, y को, y इज इक्वल टू -2x dx. यहाँ पे तो पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, तो आई एम राइटिंग मॉड ऑफ 0 से लेके 2 तक -2x dx. फाइन.
सो देयरफॉर नाउ इट इज इजी. -2x का डेरिवेटिव, -2x का इंटीग्रेशन इज -2x² 2 फ्रॉम -1 to 0 प्लस मॉड ऑफ दिस इज -2x² 2 एंड इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 and 2 एंड फिर इसका मॉड भी लेना है. इसमें ये सब्स्टिट्यूट करने पे वी गेट माइनस, तो बाहर निकाल देते हैं और अभी 0 -1, तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे -1 विच इज जस्ट +1. दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट ओवर हियर कैंसिल करने पे 2 वी विल गेट -1, तो माइनस है, जब 2 डालते हैं तब 4 मिलता है -0, तो इधर -4 मिल रहा है, लेकिन मॉड की वजह से इट बिकम्स +4. सो देयरफॉर द एरिया इज 5 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, नाउ एक्चुअली दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये ट्राइंगल है. ओके, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसका हाइट इज 2 एंड इसका बेस इज 1, सो इट इज half into 2 into 1 which is 1. Therefore we got the answer as 1. And if you look over here, the base is 2, the height is equal to 4, right? So 4 into 2 into half which is 4, right? So therefore यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब 5 आता है. ठीक है, so you can also verify your answer in this way. In the second question, we are given that we have to find the area of the region bounded by the parabola y square is equal to 16x and the line x is equal to 4. तो यहाँ पे हमें पहले तो ये y square is equal to 16x को प्लॉट करना पड़ेगा. Now this is a parabola जो x axis के along सिमेट्रिक होने वाला है, मतलब इसका शेप ऐसा कुछ होगा. ओके, so we have to figure out the points. उसके पहले हम क्या करते हैं ना, हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमें एक चीज तो पता है कि ये जो पैराबोला है, जब मैं x को 0 डालती हूँ तो y भी 0 आता है, तो इधर उसका ऐसे वर्टेक्स आएगा ना, और फिर x इज इक्वल टू 4 मतलब कहाँ आएगा. सो इफ दिस इज 1 2 3 एंड 4, तो x इज इक्वल टू 4 इज ओवर. सो दिस लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस ओवर हियर is the line x is equal to 4. Now, when I am drawing the parabola, if I put x is equal to 4 over here, then I get that 16 into 4 is equal to 64 and y square is equal to 64, मतलब y का value is equal to ±8. तो यहाँ पे on the y axis ±8 होगा and the shape will be somewhat like this. ठीक है, एकदम एक्यूरेट बनाने की जरूरत नहीं है, रफ डायग्राम से भी काम चल जाएगा. ओके, एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द रीजन बाउंडेड बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन. इन लोग ने एक्स एक्सिस की कोई बात नहीं की है, तो ये पूरा ही एरिया ढूंढना है हमें. नाउ टू फाइंड दिस एरिया, हम लोग को ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको फाइंड करना पड़ेगा, प्लस एक्स एक्सिस के नीचे है उसको भी फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, सो मैं इन सबको नेम्स दे देती हूँ सो दैट फिर इसको लिखना इजियर हो जाता है. तो सपोज दिस इज ABC एंड सपोज दिस इज D. ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, सो इट विल बी एरिया ऑफ द रीजन ABC plus area of the region ACD. Okay, and can I say that ACD का एरिया और ABC का एरिया सेम होगा? ये पैराबोला है, ये सिमेट्रिक होने वाला है, तो ये दोनों तो सेम होंगे. तो therefore I can say that this is only 2 times area of ABC. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें ABC का एरिया ढूंढना है, तो इसको भी इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, सो आई एम इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से लेके 4 तक दिस पर्टिकुलर कर्व. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 2 times इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4. वी हैव टू पुट y का वैल्यू. यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दिया हुआ है, सो y का वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16x, क्योंकि ऊपर की साइड पे तो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है, नीचे की साइड पे नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है, तो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेने की जरूरत है.
So it is 4 root x. मैंने 16 का square root ले लिया dx. Okay. Now let us integrate root x. So before I integrate, I am just writing this as x raised to half. Okay. And then on integrating, we get that this is x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 from 0 to 4, which is equal to 2 into 4 into 2 भी ऊपर चला जाएगा. So it will become 4 into 4, which is 16 by 3. Then we have 4 raised to 3 by 2 minus 0, which is equal to, now इसका 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, फिर उसका क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा. So this is 8 into 16 divided by 3, which is equal to 128 divided by 3 square units. Okay, and that is the area of this region. Let us do the next question now. In the third question, we have that find the area of the region bounded by the curve x square is equal to 16y, y is equal to 1, y is equal to 4 and the y-axis lying in the first quadrant. तो basically हमें सिर्फ first quadrant में focus करना है. We have y-axis, we have y is equal to 1, y is equal to 4. तो पहले ना ये plot कर लेते हैं, y is equal to 1 and y is equal to 4. तो y is equal to 1 will be here. ठीक है, suppose and y is equal to 4 is here. Fine. तो अभी पहले तो y is equal to 1 and y is equal to 4 are straight lines parallel to the x-axis. So let us draw that first. Okay, and now इसके बाद we have to draw this. X square is equal to 16y. इधर y linear है, so therefore it is going to be symmetric about the y-axis. So यहाँ पे when I put y is equal to 1, तो मुझे मिलता है that x square is equal to 16. That means that x is equal to plus minus 4. So here let me suppose that this is equal to 4. मैं इधर लूँगी तो बहुत फिर दूर हो जाएगा. And this is minus 4. This is 8 and this is let's say minus 8. तो जब 1 है y का वैल्यू तब x का वैल्यू प्लस माइनस 4 है. मतलब यहाँ पे जब y का वैल्यू 4 होगा तब ये 64 हो जाएगा. सो इट विल बी प्लस माइनस 8. सो इट विल बी हियर. ओके, यू नीड अ रफ डायग्राम ओनली. एंड व्हेन y इज 0 तब x तो 0 ही होता है. तो दिस इज योर वर्टेक्स. सो योर पैराबोला इज समवॉट लाइक दिस. ओके, एंड नाउ फाइनली हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन y is equal to 1, y is equal to 4, y axis lying in the first quadrant and this thing. तो only this part we have to find this area. Okay, so therefore for this हम लोग अभी x axis के along integrate नहीं कर सकते, हमें y axis के along integrate करना पड़ेगा. जैसे हमने देखा था पहले, तो वो C से D था ना, तो यहाँ पे 1 से लेके 4 तक we will integrate this curve. So required area is equal to integration from 1 to 4. Okay, and then यहाँ पे we have to write x का value, but this is x square, so you take square root, so you get 4 root y dy. Okay, positive square root क्योंकि first quadrant में ना इस side पे negative value आता x का. This is equal to 4 into y raised to 3 by 2 divided by 3 by 2. Right, we just did this. 4 से 1. इसको ऊपर लेके जाएंगे, so I get 8 by 3. And then here we get 4 raised to 3 by 2 minus 1 raised to 3 by 2. So just 1. And 4 का square root 2 है, फिर उसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा. So this is just 8 minus 1, which is 7. So we basically finally have that this is 56 by 3 square units. That is the area of this region. Let's do the next question now. In the fourth question, we are given that find the area of the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1.
and we are given a certain formula for integration. तो हम लोग को एलिप्स का एरिया ढूंढना है. हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ए बड़ा है बी से और उसका डायग्राम बना लेते हैं. वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ए छोटा भी होता बी से, फिर भी हमें सेम आंसर ही मिलता. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग द डायग्राम आई एम कंसिडरिंग दैट ए इज बिगर देन बी. Okay, so this is A, this is minus A, this is minus B and this is B. We want to find the area of this ellipse. हमें इस पूरे ellipse का area ढूंढना है. तो एक्चुअली ऐसे सब फिगर्स का एरिया हम ऐसे इंटीग्रेशन से ही निकाल सकते हैं और कोई तरीका नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ इस पूरी चीज का हमें एरिया निकालना है. हमें पता है ये सिमेट्रिक होगा, मतलब इस साइड पे जो होगा यही इधर होगा, ऊपर नीचे भी सिमेट्रिक होगा. एक्चुअली ईच ऑफ दीज 4 विल ऑल्सो बी इक्वल. तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग द होल थिंग हम लोग ना सिर्फ एक को ही इंटीग्रेट कर, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो वी आर बेसिकली गोइंग टू इंटीग्रेट ओनली दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है. नाउ उसके अलावा, so suppose I'm integrating with respect to the x-axis, then I have to get the value for y. Here we don't have y explicitly, मतलब mixed है ना, तो हम लोग पहले y को अलग से निकालते हैं. तो in that case we have x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. मैं पहले इसको इस साइड पे ले आती हूँ, तो I get y square by b square is equal to 1 minus x square by a square. और अब मैं b square को भी ऊपर लेके जाती हूँ, इधर थोड़ा एलसीएम ले लेती हूँ, तो मुझे मिलता है दैट दिस इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो ये b अपॉन ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ इसके बाद वी हैव गॉट द वैल्यू फॉर y एंड नाउ वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस. So required area is equal to 4 times the integration from 0 to a of this function, that is basically b by a square root of a square minus x square dx. Okay, now iska integration is given here. Okay, so we write this down over here. So therefore we get that 4 into b by a, अभी इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a. दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू a. पहले हम a डालते हैं. जब a डालते हैं तब ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 0. फर्स्ट टर्म 0 हो गया. यहां पे जब डालेंगे तब हमें मिलता है ए स्क्वायर बाई 2 एंड यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 मिलेगा बिकॉज a बाई ए. ठीक है, माइनस जब 0 डालते हैं तब ये 0 हो जाता है एंड हियर वी हैव ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 0. ओके, नाउ इसके बाद योर साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2. So 4b by a square by 2 into pi by 2 minus यहाँ पे we get a square by 2 sin inverse of 0 is 0 only. तो ये टर्म भी गायब हो गया. So we are left only with this part. So therefore we have 4b a square pi divided by 4a. Okay, अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, a और एक और a भी कैंसिल हो जाएगा एंड वॉट वी आर लेफ्ट विद इज ओनली पाई a b. ओके, सो दैट इज द एरिया ऑफ एन एलिप्स. जब भी हम लोग को ऐसा कोई एलिप्स दिया होता है तो उसका एरिया होता है पाई इंटू a इंटू b. तो एक्चुअली एलिप्स को अगर सर्कल समझो, मतलब जहाँ पे b और a सेम ही हो जाएगा तो वो एलिप्स सर्कल बन जाएगा ना. तो इन दैट केस क्या होता, एरिया ऑफ अ सर्कल हमें ऑलरेडी पता है कि इट इज पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे भी अगर a और b इक्वल हो जाता तो फिर यहाँ पे भी हमें मिलता दैट दिस इज पाई a स्क्वायर और पाई b स्क्वायर विच इज द सेम एज पाई आर स्क्वायर. ओके,
So that is how you calculate the area of an ellipse. Okay, now let us do the last question. Find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square and the line y is equal to 4. Now, first of all, let us draw the line y is equal to 4. So that is going to be a line that is parallel to the x-axis, right here. Now we have to draw the parabola. The parabola is y is equal to x square. अब ये पैराबोला तो y एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा, तो व्हेन y इज इक्वल टू 4 तब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी -2 एंड +2. तो यहाँ पे इफ आई हैव -2 एंड हियर आई हैव +2 एंड इफ दिस इज 0, तो आई एम जस्ट गोइंग टू जॉइन दिस बिकॉज वी नो ऐसा ही शेप आएगा इसका. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन दीज टू, so that means that we have to find this area. And to do this, we can again use symmetry. We can say that ये और ये same ही होगा. So therefore हम लोग को बस ये वाला पार्ट का भी एरिया निकाल लिया तो डबल कर सकते हैं. So required area is equal to 2 times. Now here we cannot integrate on the x-axis. It is based on the y-axis. So 0 से लेके 4 तक जो भी x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू will be √y dy. That is what has to be integrated. उसको डबल करना है. So this is equal to 2 times y raised to 3/2 divided by 3/2 from 0 to 4. So then this becomes 4/3. 4 raised to 3/2 minus 0. This is equal to 8. So 4 into 8 is equal to 32 divided by 3 square units. Okay, and that is our final answer. So with this we have solved the examples. Now in the next video we will solve the exercise.